Okay. Okay. So this is the first essay. We are going to just touch and see intros and conclusions. Okay. Okay, ma'am. Okay. Research indicates that the characteristics we are born with have much more influence on our personality and development than any experiences we may have in our life. Which do you consider to be the major influence? This is a which category essay? Anybody who's been attending my classes from some time can you say? Can you tell me? Direct question. Direct Yes, question. it is a direct question. But apart from that, like what is like This is globalization, asking your job? opinion. What is this? Opinion question, ma'am. Nature versus nurture. Nature versus nurture. Yes, that is what I wanted to hear. Opinion तो सारे ही होते हैं. Opinion ऐसे सारे होते हैं. Okay. In the sense that हर ऐसे में आजकल opinion देना है. जो discuss है उसमें भी opinion देना है बाद में. ठीक है? पर इसमें ना आपका direct question है. Direct question means they've just asked you a question. You have to answer that in the introduction. And then you have to base your essay on this introduction that you make. Okay? So this is a nature versus nurture essay. Nature means genes or heredity, and nurture means the parvarish. Nurture means the surroundings, the environment, the bringing up. That means nurture. Okay, nature versus nurture. This is that broad category. Okay. एंड इसमें और कैसे ऐसे आते हैं, इसमें ऐसे आते हैं कि कुछ लोग कहते हैं लीडर्स बॉर्न होते हैं, उनमें बॉर्न इनबॉर्न क्वालिटीज होती हैं, वीना ये लाइंस मत डालो, और कुछ लोग कहते हैं कि कोई लीडर बनाया जा सकता है बाय ट्रेनिंग. अब लीडर वाले क्वेश्चन में तो यू कैन गो विद बनाया जा सकता है विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड यू नो, बट अगर आपको आ जाए कि कुछ कहते हैं कि म्यूजिकल टैलेंट इनबॉर्न है एंड कुछ लोग कहते हैं कि ये डेवलप किया जा सकता है, तो उसमें थोड़ा सा आप नेचर की तरफ जा सकते हो, जीन्स की तरफ, के अंदर इनबॉर्न भी थोड़ा टैलेंट होता है किसी में सिंगिंग का. ठीक है, तो आपको ये देखना है नेचर वर्सेस नर्चर ब्रॉड कैटेगरी है. ये तो सीधा सीधा ऐसे है कि कुछ लोग कहते हैं कि जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हमारा बर्थ हुआ है वो हमारी पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट को ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं than any experiences we may have in our life. Which do you consider to be the major influence? आपके हिसाब से नेचर है कि नर्चर है? ठीक है. So here you have to answer this question. Which do you consider to be the major influence? The introduction that I have written is nature versus nurture. Now nature versus nurture, this will not be given in your essay. Okay, these are the terminologies that if you will learn, you can put in your essay. One of you recognize ना कि ये nature nurture essay है. बस ऐसे recognize करना है ये globalization है, nature nurture है, तो किस तरह का ये essay आपको recognize करना है एंड उस हिसाब से आपको बनाना है. ठीक है. तो nature versus nurture debate has been around for ages and has been supported well by both sides. Nature referring to heredity and nurture referring to the environment are two very reasonable explanations as to why we are the people we are today. ठीक है. I consider that both nature and nurture influence us in different ways and there is no way to show that what has the bigger role. ठीक है. तो मैंने ये कहा है कि दोनों नेचर नर्चर हमें इन्फ्लुएंस करते हैं डिफरेंट वेज में और कोई तरीका नहीं है शो करने का कि किसका रोल बिगर है. आप कुछ भी लिख सकते हो. आप लिख सकते हो नेचर का ज्यादा रोल है, आप लिख सकते हो नर्चर का ज्यादा रोल है. फिर एक पैरा आप नेचर के, जो मेरी इंट्रोडक्शन है वो कह रही है कि दोनों का डिफरेंट रोल है और किसका बड़ा रोल है ये डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है. ठीक है. तो मैंने उस हिसाब से बना दिया. एक पैरा मैंने नेचर के रोल का बना दिया है, एक पैरा मैंने नर्चर के रोल का बना दिया है, फिर एक पैरा मैंने कह दिया कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन. क्योंकि अब जैसे देखो, आपने सुना होगा कि कोई पूछता है अच्छा आप डॉक्टर हो, मतलब आपके बच्चे डॉक्टर हैं? हाँ, डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टरी बनते हैं. ऐसा कोई जीन्स थोड़ी होते हैं डॉक्टरी वाले. पर हाँ, जो डॉक्टर्स हैं या टीचर्स हैं उनको पता है कि अपने बच्चों को वो माहौल देना है ताकि वो कुछ बने, तो वो घर में वो एटमॉस्फेयर देते हैं तो बच्चे कुछ बन जाते हैं आगे. यू गेट माई पॉइंट. तो इस वे में आप लिख सकते हो. और नेचर के वाले पैरे में आप लिखो कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स है, अगर उनको अलग अलग जगह बड़ा किया जाए तो भी उनमें कुछ
चीजें सिमिलर देखी जाती हैं, एंड दिस मीन्स दैट नेचर डज प्ले अ रोल. नेचर मीन्स जीन्स डू प्ले अ रोल, हेरिडिटी डज प्ले अ रोल. ठीक है, ये समझ आ गया पॉइंट? देखो ma'am. देखो, अगर कोई आइडेंटिकल ट्विंस है और एक बच्चा कोई और ले जाता है और बाहर उसको पालता है, किसी और जगह पालता है, अलग अलग परवरिश होती है दोनों बच्चों की, फिर भी जब बड़े होते हैं उनमें देखा जाता है कि कुछ ट्रेट सिमिलर है. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर उनमें कुछ ट्रेट सिमिलर है तो इसका क्या मतलब? नेचर का रोल है. समझ आ गया ना? ये थोड़े डिफिकल्ट ऐसे है आम बच्चों के लिए, तो इसको इजी बहुत है. अगर एक बार आपको बस पता चल जाए कि क्या लिखना है, अगर ये आया तो ऐसे लिखना है. ठीक है. और जो दूसरा पैरा है नर्चर वाला, नर्चर वाले में उसका भी रोल है हमारे बिहेवियर पे और कैरेक्टरिस्टिक्स पे. ठीक है. उसमें यह है कि नर्चर की वजह से कोई बिल्कुल डिफरेंट वे में पालो तो वो हो सकता है कि अगर उसमें कोई जीन्स है, जैसे एग्रेसिवनेस के जीन्स हैं, तो नर्चर से है उसको अच्छी परवरिश देके उसको बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी में शेप किया जा सकता है. ठीक है. और अगर एनवायरनमेंट का रोल नहीं होता तो जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनको कहीं भी बड़ा करो, उनके बिल्कुल सेम होने चाहिए, बट बहुत बड़ी स्टडीज ने ये बताया कि उनमें फिर भी बहुत डिफरेंसेस होते हैं. चाहे कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं बट डिफरेंसेस भी बहुत होते हैं. यस गुरप्रीत, आपने कुछ कहना है? मैम हाँ जी, आईफोन. हाँ हाँ, सत श्री अकाल जी. मैं ਤੁਹਾਡਾ न्यू स्टूडेंट आई आज. हाँ जी, की ना है? मेरा नाम गुरप्रीत जी. हाँ जी गुरप्रीत. ओके हाँ जी, गुरप्रीत, कल गल होई ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰੋਸ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਐਸੇ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਨੇਚਰ ਨਰਚਰ ਦਾ ਐਸੇ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, तो ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ नहीं ਗਈ. नहीं ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਾ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਚਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਓ. See, it is your opinion. Yeah, they have asked you a question. When you are answering it, it is your opinion. And your opinion will be the answer. Just one second. Okay, so this is your opinion. Now the whole essay you have to write in your views. You get my point? Yeah. Even if it is a direct question essay, it is basically based on what you write in the introduction. Yeah. Okay, so it becomes your opinion. Okay, so it becomes your opinion. So all these are in a way opinion essays. अगर problem solution भी है तो आपने जो लिखा है ऊपर, वो आपने जो अंदर लिखना है वो आपने अपने ओपिनियन के हिसाब से लिखना है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉल्यूशंस हैं. बेसिकली ओपिनियन को मिस इंटरप्रेट मत करो. ओपिनियन ऐसे वैसे होता है कि एग्री डिसएग्री है, या इज इट ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, या डू आर द एडवांटेजेस मोर देन द डिसएडवांटेज. ये 3 ऐसे हैं जिनको हम ओपिनियन एसेस कहते हैं. फिर एक डिस्कस ऐसे है, फिर एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे है. बट all these essays basically ultimately what you write in your introduction, जो आपका ओपिनियन है आप वही लिखते हो ना इंट्रोडक्शन में. हाँ जी, वो तो. और फिर उस पे स्टैंड करना है. तो ये बेसिकली सारा आपके वर्डिंग से जाना चाहिए. सिर्फ एक डिस्कस ऐसा है जिसके 2 पैरे ऐसे बनते हैं जिनमें एक पैरा जो होता है वो कुछ लोग ऐसे क्यों कहते हैं, दूसरा पैरा होता है बाकी लोग ऐसा क्यों कहते हैं, वो उस वे में जाना है. और फिर तीसरे पैरे में आपने अपना ओपिनियन देना है, उसको आई बिलीव दैट करके शुरू करना है. पर बाकी सारे एसेज में सम पीपल अदर पीपल मत करना. वो सब आपका ही व्यू चलता है. जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा वो आपका ही व्यू है. ओके, ठीक है. तो उस वे में चलेगा. ठीक है. तो इसमें क्या है कि हाँ, मैंने लिख दिया कि दोनों का रोल है, अलग है, और ये डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है कि किसका रोल ज्यादा है. ठीक है.
तो नेचर और नर्चर बेसिकली इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है. मैंने ये लिखा है कि इनएक्सट्रिकेबली, ये वर्ड मैंने करा हुआ है कि उनका इतना आपस में लिंक है, इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है. तो कहना बड़ा मुश्किल है कि नर्चर का रोल ज्यादा है कि नेचर का रोल ज्यादा है. ठीक है, या 1 मिनट में नोटी को छोड़ के. You got my point? Yeah. So in this essay, you just write what your views is. If in the introduction you say that nurture has a more role, then you will support your essay by nurture. 2 paragraphs of nurture and 1 paragraph of nature. Okay, and Yeah. then say nurture has a more role. मैंने actually कह दिया कि दोनों का equal है और different role है और it is very difficult. So the more मैंने अपना view ये बनाया है. Basically मैंने एक जो view बनाया nature का वो भी मेरा view है क्योंकि मेरे पास जो points है मैंने उनसे बनाया है. You get my point? Yeah. उससे Yes. बनाया है. और फिर मैंने the more we delve into the topic, the more the evidence reveals that the answer is both. There is a lot people inherit from their parents through genes, but there is also a lot picked up by observing their parents. ठीक है? I believe it is impossible to determine what plays a bigger role. What plays a bigger role? I see. In some cases, Yeah. people's environment and upbringing might be more responsible for who they turn out to be. Okay, and in some cases it might be their natural inborn qualities they inherited. Okay, so ये है, Okay. it's very difficult. मैंने ये बोल दिया इस essay में. और ये direct question essay है. अब आपको direct question essay handle करना आ गया सब बच्चों को. अगर किसी को कोई query है, we can give more time to at this point over here. ठीक है, जो मैं आज discuss कर रही हूँ essays, I will be sharing this file with you. Don't worry about that. डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे हमने पहले टर्न करा. बच्चे बोलते हैं कि मैम हमसे इंट्रोडक्शन नहीं बनती, हमसे फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनता. तो इसमें देखो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा है. इंट्रोडक्शन में लिखा है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट हैज बीन गोइंग अराउंड फॉर एजेस and has been supported well by both sides. Nature referring to heredity and nurture referring to environment are two very reasonable explanations as to why we are the people we are today. I consider that both nature and nurture influence us in different ways and there is no way to show what has the bigger role. तो ठीक है ना, ये मैंने ऊपर ये लिख दिया. फिर मैंने एक पैरा नेचर से क्या, नेचर से हमें पर्सनालिटीज, लुक्स एंड अदर थिंग्स मिलती है. फिर मैंने आइडेंटिकल ट्विंस की एग्जांपल डाल दी. इफ आइडेंटिकल ट्विंस आर रियर्ड अपार्ट, they are far more similar in personality than randomly selected pair of people. ठीक है? Yeah. और फिर दूसरा पैरा मैंने नर्चर excuse का me. बना दिया. Yes, Ma'am, Samiksha here. yes, Samiksha. Ma'am, I truly don't understand where we use has been and where we use only has. Like nature versus nurture debate has around or has Has been around for around. ages तो सेंस ही नहीं बननी ना. Has been around और हाँ. एजेस से ये आसपास है हमारे. मतलब ये डिबेट जो है वो चल रही है फ्रॉम एजेस एंड हैज बीन सपोर्टेड वेल बाय बोथ साइड्स. और दोनों साइड्स ने इसको सपोर्ट करा है. कुछ लोग कहते हैं नेचर का ज्यादा रोल है, कुछ लोग कहते हैं नर्चर का ज्यादा रोल है. ठीक है, तो आई बिलीव Can you give some like Has and trick perfect जहाँ से tense. पता चले कि यहाँ पे has ही लगना है, been नहीं लगना है यहाँ पे. एक्चुअली वहां मैम टाइम मेंशन किया है ना कि अराउंड 4 एजेस. हाँ, हम देखो अगर इसका हैज के साथ वो नहीं लगाओगे तो फिर वो Sense नहीं हैज बनेगा. फिर रेगुलर वर्ब हो जाएगा ना. द ही हैज अ पेन, उसके पास पेन है, फिर हैज का ये मीनिंग चला जाएगा. तो हैज बीन अराउंड फॉर एजेस वहां पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है. तो बीन थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस है. मेरे को समझाना नहीं आ रहा है बट हैज अराउंड फॉर एजेस तो सेंस नहीं बन रही इसमें क्या. ओके, Excuse me, ma'am. मेरे यस, को मैं Could you please enlarge the text? It is not properly legible to me. ओके, श्योर. Thank you. Is it okay now? Better, ma'am. Thank you. Okay. So has been around for ages, has around for ages तो सेंस ही नहीं बन रही.
has been there, Ma'am, has been around. इसमें ऐसा होता it's Yes. like that the work is still going on and that work is not completed yet and that debate is still going on. तो Yes, जहाँ पे it हर is काम हो going रहा on. है तो वो तो- has been हाँ, ये लगता है like हाँ. I have been working, मैं अभी काम कर रहा हूँ, वो वो I खत्म have नहीं been हुआ working है। in the kitchen for, ये है present Yes. perfect tense है, ये हाँ present perfect हाँ tense जी। है. तो अभी तक इसका इफेक्ट जा रहा है और ये काम चल रहा है, ठीक है? That is what. Pardon? has been basically ये है कि उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि the role has been, उसका रोल रहा है उसमें, हाँ, रहा है ना. अब has for been ages और around हम टाइम नहीं ages, मतलब स्पेसिफाई उसका कर रहे. रोल रहा है और अभी भी चल रहा है मैम, अभी ये भी चल हुआ रहा है। है. बेसिकली कि किसी चीज के बारे में पास्ट चीज. ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना. देखो, he has been working in the kitchen for 2 hours. कंटिन्यूस भी हाँ. हो गया मैम. हाँ, ठीक है. he has been working, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, यस मैम. ठीक है. और ये Nature versus nurture डिबेट has been around for Age- ages से हमारे ages आसपास है. काफी टाइम से रहा है, ये डिबेट रहा है. रहा है. और अभी तक इसका कोई जवाब, वो दोनों Yes, साइड्स yes, इसको still इक्वली going सपोर्ट on. कर रही हैं. अभी इसका कोई Yeah. जवाब नहीं है ना. जी जी. या दैट इज इट. फिर नेचर का एक पैरा बना दिया, नर्चर का एक पैरा बना दिया है, और फिर उसके बाद मैंने एक बोल दिया कि दोनों का रोल है, और मतलब इम्पॉसिबल है डिटरमिन करना कि किस चीज का बिगर रोल है. ये मैंने लिखा है, ठीक है. तो ये एक यस यस मैम ये 2021 में अभी आया है क्या ऐसे, जैसे वो कल ये क्लाइमेट वाला आया था? 2021 में तो अभी एक टेस्ट डेट निकली है बेटा आज तक. ओके. तो उसमें तो नहीं आया, पर पहले बहुत बार आ चुका है. ये सारे पास्ट एग्जाम एसेज ही हैं जो मैंने कंपाइल करे हैं पिछले 14 सालों से, और ये रिपीट होते हैं बार बार. ओके मैम. ठीक है. एंड अभी यस ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ. ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਸੀ ਨਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਇੱਕ ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ 2 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਮੈਸੇਜ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ. ओके ओके. तो ऐसे है. सी द थिंग इज दैट पहले क्या होता था, जब मैं 2006 में मैंने पढ़ाना शुरू करा, एक ऐसे आ गया तो 2 साल के लिए दोबारा नहीं आता था वो. तो मैं बच्चों को बोल देती थी अब इस ऐसे को सेफली छोड़ दो. एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज सितंबर में आया तो अक्टूबर में नवंबर में रिपीट हो गया. सो अभी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ आपको कि इसको छोड़ दो. अभी तो सारे एसेज आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है. जो अभी रिसेंटली एग्जाम में देखे गए वो भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. देयर वाज अ मैप व्हिच केम इन अगस्त लास्ट ईयर, फिर वो सितंबर में आया, फिर वो नवंबर में आया, सेम मैप. ओके. द रीजन आई टेल यू व्हाट द रीजन फॉर दिस इज. द रीजन इज दैट बहुत ज्यादा पेपर सेट हो रहे हैं. कंप्यूटर बेस्ड बच्चे बहुत दे रहे हैं. कंप्यूटर बेस्ड की भी डेट्स है, दूसरी भी डेट्स है. जगह डिफरेंट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड उनमें डिफरेंट एग्जाम सेट कर रहे हैं. मॉर्निंग आफ्टरनून सेशन हो गया एग्जाम का. तो इतने पेपर सेट हो रहे हैं, वो रैंडमली कुछ भी चुन के कहीं भी डाल देते हैं. तो इस वजह से दे आर बीइंग रिपीटेड वेरी वेरी ऑफन. तभी मैं आप बच्चों को जो लेटेस्ट आया होता है ना वो शेयर कर देती हूँ कि ये ऐसे भी कर लो. अभी आया, अभी दोबारा भी आ सकता है. ठीक है. So it's just that you people just keep on doing whatever has been seen, and this book contains all the past essays. Ma'am, yes. can you share? Pardon? Can you share this answer in the group, ma'am? Yeah, I'll share whatever I teach. I share immediately afterwards. Don't worry about that. Ma'am, is the speaking book ready for 21? Speaking book first version is ready. The second version we'll put up by Saturday. No, ma'am. First question is ready. I am asking about the book. Speaking book Yes. जो है ना मेरी guest work की, that changes every 4 months. January, May and September. Okay. The book is ready. The first version is ready. We are just waiting for any new questions we come to know, and then we'll publish the second and the final version by this Saturday. By this Saturday. Okay, Yes, ma'am. Okay. that is only in the PDF form. Otherwise, Okay. the book is there. Book changes just once a year. Okay. Okay. So this is it. ओके. ये ऐसे हमने कर लिया. अब हम दूसरा ऐसे देखते हैं. दूसरा ऐसे क्या है? दूसरा ऐसे है, children who grow up in families which are short of money are better prepared with the problems of adult life than children who are brought up by wealthy parents. To what extent do you agree or disagree? अब ये agree disagree आ गया. अब मैं हर तरह का ऐसे टच करना चाहती हूँ आज for the intro and the conclusion. Okay. Now ये ऐसे कह रहा है कि जो children है, एक इसको भी बड़ा कर देती हूँ.
वो कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं जो गरीब घरों में पैदा होते हैं वो जब एडल्ट्स हो जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स हैंडल करनी बेटर आती हैं उन बच्चों के कंपैरिजन में जो बच्चे अमीर घरों में पैदा होते हैं। आप इससे सहमत है कि असहमत है? मैम यस मैम इट इज ट्रू। हाँ, तो यही हमने करा हुआ है। मैंने कहा है कि Yeah. आई बिलीव दैट एडवर्सिटी क्या होती है? व्हाट इज एडवर्सिटी? मैम मतलब bad impact on someone, like What is adverse prosperity? impact. What is prosperity? Prosperity means growth. Prosperity means खुशहाली and Yes, ma'am. adversity means बदहाली। ओके, देखो एक कोटेशन बताती हूँ आपको, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है। इन प्रॉस्पेरिटी योर फ्रेंड्स नो यू, इन एडवर्सिटी यू नो योर फ्रेंड्स। Yes, ma'am. इसका मतलब क्या है? मैम मतलब इसका मतलब उस ये टाइम है में ये तो समय ਦੇ ਵਿੱਚ फ्रेंड्स कुछ साथ देते हैं बट दुख में कोई साथ नहीं देता। दुख में Yeah, आपको ma'am. पता चलता है आपका दोस्त कौन है। असली सुख में फ्रेंड तो- कौन है? सुख में आपके दोस्त जो है, आपके दोस्त सब आपको जानते हैं, और दुख में आप जानते हो कि आपके दोस्त कौन है। Yes, ठीक है, ma'am. और ये है। अब प्रॉस्पेरिटी एडवर्सिटी का मतलब आ गया। तो एडवर्सिटी जो है ना, मैंने लिखा है कि एडवर्सिटी इज ए गुड टीचर ऑफ लाइफ एंड सो चिल्ड्रन हु हैव सीन पॉवर्टी इन चाइल्डहुड आर मच बेटर एट फेसिंग एडवर्सिटीज इन एडल्टहुड। Yeah. ठीक है, ये वैसे इसमें कोई नेचर नर्चर का रोल नहीं है, इसमें रिच पुअर का रोल है। भी जो रिच फैमिलीज के बच्चे हैं वो लेस प्रिपेयर्ड होते हैं टू डील विद प्रॉब्लम्स इन एडल्टहुड देन चिल्ड्रन हु आर बोर्न इन पुअर फैमिलीज। तो ये समझ आ गया आपको? यस ऐसे ठीक है, तो मैंने इसके साथ एग्री करा है, टोटली एग्री करा है। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, इसको आप 2 वेज जा सकते हो। आपको कितना आपने बताया, अभी मैं ये चीज समझाने वाली हूँ कि अगर आपने मैंने लिखा है कि आई एग्री कि जो पॉवर्टी है वो बेटर टीचर ऑफ लाइफ है, एडवर्सिटी बेटर टीचर ऑफ लाइफ है, और ये बच्चे मच बेटर होते हैं एट फेसिंग एडवर्सिटीज इन एडल्टहुड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, पहले पैरे में अब मैंने लिखना है क्यों पुअर फैमिलीज के बच्चे बेटर होते हैं, दूसरे पैरे में मैंने इसी बात को सपोर्ट करना है, और तीसरे पैरे में भी मैंने इसी बात को सपोर्ट करना है। ठीक है, और फिर मैंने समिंग अप कर देनी है, वही चीज दोबारा लिख देनी है कि यस, वीकर बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे जो बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं डीलिंग विद एडल्ट लाइफ चैलेंजेस एज कंपेयर टू दोज हु कम फ्रॉम एफ्लुएंट फैमिलीज। एफ्लुएंट होती है रिच फैमिलीज। मैंने Yes. वही चीज कर दी। अब मेरे इंट्रोडक्शन के हिसाब से मेरा जो एसे है वन साइडेड है। आपको समझ आ गया एग्री डिसएग्री एसे को कैसे हैंडल कर सकते हो? ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते, अगर आप 2 वे जाना चाहते, फिर आप कैसे लिखते, ये बताओ। अगर आप डिसएग्री कर सकते हो और एक पैरा फिर आप फिर भी पॉवर्टी वाले पैरे का बना सकते हो, Yes, ma'am. और वो डिसएग्री करके फिर भी ऐसे बन जाएगा, और उसमें आपने कंसेशन दे देना है पॉवर्टी वाली साइड को, फिर आपका ऐसे डिफरेंट बनेगा, पर वो भी करेक्ट होगा, उसमें भी कोई ये नहीं है कि गलत होगा। बट आपका जो व्यू है, जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है ना, वही आपको सपोर्ट करना है अपने ऐसे में, और वही आपको कंक्लूजन में लिखनी है बात, कोई नई बात नहीं लिखनी। बस ये बात अगर आपको समझ आ जाए ना, आइल्स ऐसे हो जाता है, ये कुछ डिफिकल्ट है। अब बताओ, अगर आप बोलते हो कि जहां पॉवर्टी एक अच्छी टीचर है, मैं डिसएग्री करती हूँ कि जो बच्चे पुअर रिच फैमिलीज में हैं, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू हैंडल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। समझ गए? आपने कहा है कि पॉवर्टी एक अच्छी टीचर है लाइफ की, पॉवर्टी इज ए गुड टीचर, ठीक है, बट आई डिसएग्री कि सिर्फ वही बच्चे बेटर प्रिपेयर्ड है टू हैंडल एडवर्स चैलेंजेस ऑफ लाइफ, जो पुअर फैमिलीज में, रिच फैमिलीज के बच्चे भी अच्छा हैंडल कर लेते हैं चैलेंजेस। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना? यस मैम। हाँ, तो फिर आप पॉवर्टी वाला एक पैरा बना दो कि हाँ, पॉवर्टी वाले दोनों माँ बाप काम कर रहे होते हैं, बच्चों को अपने आप डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, तो उनको हैंडल करनी ज्यादा बेटर आ जाती है चैलेंजेस ऑफ लाइफ। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है ना एक पैरा। फिर आप 2 पैरे बना सकते हो कि जो रिच बच्चों के लिए क्या एग्जांपल दे सकते हैं? रिच बच्चों के लिए ये एग्जांपल दे सकते हो कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको उस वे में ब्रिंग अप कर सकते हैं कि उनको ये चीजें सिखा दें कि कैसे लाइफ को हैंडल करना है। उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स उनको अच्छे स्कूलों में डाल सकते हैं जहाँ पे उनको ऐसी चीजें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये सब चीजें सिखाई जाए अच्छे से। दे ऑल्सो नो व्हाट इज लाइफ। उनके पेरेंट्स की ब्रिंगिंग अप पे बहुत डिपेंड करता है कि वो चैलेंजेस हैंडल कर सकते हैं कि नहीं।
मैम एग्जाम्पल ये भी डाल सकते हैं ना, रिच लोग अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं, सो दे आर हैंडलिंग देयर सेल्फ ऑन देयर वे। ऐसे है, पर देखो आप जैसे हमने मेरे पास सब रिसोर्सेज थे कि मैं कार में भेज सकती बच्चों को, जलंधर पढ़ने जाते थे यहाँ से, पर मैंने कहा नहीं, बस में जाओ, आपको आइडिया होना चाहिए कि बस में कैसे जाते हैं सब लोग, बस में जाओ आओ, रोज आधा घंटा जाते थे बस में, बट नाराज भी होते थे मेरे बच्चे कि हमारे साथ के सारे बच्चे कारों में जाते हैं, अब हमें क्यों नहीं भेजते। मैंने कहा ये चीजें आपको आनी चाहिए, अकेले जाओ। मैं तो बैंक में भी भेजती थी, पोस्ट ऑफिस में भी भेजती थी, सारे काम खुद अकेले कि जाओ ये करके आओ, ये करके आओ। तो ये चीजें सिखानी पड़ती है, जो अगर सिखा लोगे तो वो भी इक्वली प्रिपेयर्ड होंगे टू हैंडल चैलेंजेस ऑफ एडल्ट लाइफ। अगर प्रोटेक्टेड लाइफ देंगे पेरेंट्स, तभी नहीं होंगे ना वो प्रिपेयर्ड। अगर पेरेंट्स उनको एक्सपोज करेंगे तो अपने आप हो जाएंगे। आप ये पॉइंट्स नहीं डाल सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन द। हाँ, पार्डन? यस, आप वन साइडेड भी बना सकते हो, आप कंसेशन देके दोनों पॉइंट्स लिख सकते हो। बस ये मेरे को आपको सिखाना था कि एग्री डिसएग्री ऐसे में आपका ऐसे रेस्ट करता है आपकी इंट्रोडक्शन पे। ठीक है मैम, समझ आ गया? यस मैम, in this question, like in introduction, we earlier used to write the paraphrasing of the statement. Like in this question, we can write, it is believed that children who grow in rich families, like that we can do paraphrasing, and then can we start what is our opinion? Yes, of course, वही करा हुआ है मैंने, वही करा। It is believed that children of poor families are better equipped in dealing with challenges of adult life than children of rich upbringing. तो ये हो गया, paraphrasing हो गई ना। फिर उसके बाद मैंने कह दिया, I believe that adversity is a good teacher of life, and so children who have seen poverty are much better at facing. तो मैंने agree करा ना, आपको पता चल गया ये agree है। Yes, हाँ, तो बस वही है, कुछ भी नहीं है, वही करा है। कुछ जो मैंने आप बोल रहे हो वही करा है। जो मेरा पुराना एडिशन है ना, उसमें मैंने टू साइडेड गई हुई हूँ कि एडवर्सिटी इज ए गुड टीचर, पर रिच फैमिलीज के बच्चे भी उनको, रिच पेरेंट्स भी उनको ब्रिंगिंग अप में सब चीजें सिखा सकते हैं, टू ब्रिंग अप टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ठीक है? पार्डन? यस नवदीप? And we can use while sentence also. Yes, while adversity is a good teacher of life, comma, I disagree that only children are born up in poor families can deal with challenges. I believe even rich families' children can face the challenges of adult life in a very good way. नवदीप, while हो गया ना? Yes, ma'am. Yes. हाँ, बहुत अच्छा है। That is it. While लगा के आप कंसेशन दे सकते हो कि हाँ, रिच पुअर फैमिलीज, जो पॉवर्टी है वो गुड टीचर ऑफ लाइफ है, पर रिच फैमिलीज के बच्चे भी अच्छा सीख सकते हैं सब कुछ, मैनेजिंग चैलेंजेस। जो मेरा पुराना एडिशन था उसमें मैंने रिच फैमिलीज वाले उस फेवर में दिया हुआ है, बट ये वन साइडेड बना दिया है। कोई जो दोनों ऐसे इक्वली गुड जाएंगे। ठीक है? ये आपको समझ आ गया? एग्री डिसएग्री ऐसे आप कैसे हैंडल कर सकते हो? You can see, you can strongly agree, you can strongly disagree, you can agree with a concession, फिर strongly word नहीं आएगा, you can disagree with a concession. ठीक है? Got it? Let's see what the next essay is. Okay. ओके, ये है, ये आप बताओ मुझे कौन सी कैटेगरी का है? इन मेनी कंट्रीज टुडे देयर इज इनसफिशिएंट रिस्पेक्ट टू ओल्ड पीपल. व्हाट आर द रीजंस? व्हाट प्रॉब्लम्स माइट इट ब्रिंग टू द सोसाइटी? प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है? जो थीसिस स्टेटमेंट में एग्जामिनर को क्या, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? द स्टेटमेंट व्हिच टेल्स द एग्जामिनर what you are going to write in this essay. Okay, so those who have joined me today, for them I'll just tell you IELTS essay in a nutshell. What is IELTS essay in a nutshell? In the introduction, tell the examiner what you have to tell them. Okay, दो examiners होते हैं ना, दो जने check करते हैं, तो tell the examiners what you have to tell them. In the body of the essay, tell them. In the conclusion, tell them what you told them. That is it.
ओके, सो इंट्रोडक्शन में जो आपने लिखना है, आप देखो हिंदी में इंट्रोडक्शन में उनको बताओ उनको क्या बताना है, बॉडी में उनको बता दो, और कंक्लूजन में उनको बताओ कि क्या बताया है। ओके, ठीक है, दैट इज इट, या है ना। इंट्रोडक्शन में बताओ क्या बताना है, फिर बता दो, फिर कंक्लूजन में बता दो क्या बताया है, बस दैट्स इट। इंट्रोडक्शन, टेल देम what you have to tell them, then tell them, and then tell them what you told them. ठीक है। और दूसरा मैं इसकी डेफिनेशन इसको लाइकन करती हूँ टू ए बर्गर। बर्गर में ना जो ऊपर और नीचे की जो ब्रेड है, बन की जो ब्रेड है, वो मैं कहती होती हूँ बिल्कुल थिन रखो, क्रिस्प रखो, सॉगी नहीं होनी चाहिए, मोटी मोटी कर देते बच्चे, सॉगी इंट्रो कंक्लूजन, सॉगी इंट्रो कंक्लूजन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्रिस्प, क्रिस्प इंट्रो, क्रिस्प कंक्लूजन, और अंदर 3 मोटी मोटी टिकियां, 3 बॉडी पैराग्राफ। ठीक है, दैट इज द बर्गर, द आइल्स एसे। ओके, दैट इज द बर्गर, क्रिस्प, थिन इंट्रो, कंक्लूजन एंड द बॉडी पैराग्राफ्स। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में ऐसे ऐसे में जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे है, उसमें आपने लिखना है देयर आर सेवरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल इन रिस्पेक्ट फॉर द एल्डरली अमंग द सोसाइटी, and this can have many adverse effects on the society. ठीक है। So it is irrefutable that in some parts of the world the respect and admiration for elderly has reduced. ये होगी paraphrasing. There are several factors responsible for this fall in respect for the elderly among the society, and this can have many adverse effects for the society. अब ये उन्होंने problems ही पूछी है ना society की, और इसके क्या reasons हैं, मैंने उसके लिए एक sentence touch कर दिया, तो ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट है। दिस इज अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन विद अ गुड थीसिस स्टेटमेंट। ओके, ये समझ आ गया आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन? यस। ओके, अब फिर पहले पैरे में रीजंस हैं क्यों उनको रिस्पेक्ट नहीं देते आजकल के बच्चे, दूसरे पैरे में भी रीजंस हैं, और तीसरे पैरे में कॉन्सिक्वेंसेस है। नाउ दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे, ये क्या एसे है, कॉज इफेक्ट एसे। देखो सॉल्यूशंस मांगे हैं इंट्रो में, देखो सॉल्यूशंस मांगे हैं, बताओ सॉल्यूशंस है कि कुछ? हाँ, प्रॉब्लम पूछी है क्या हो सकती है आफ्टर। हाँ, तो ये क्या हो गया, इफेक्ट। प्रॉब्लम क्या होती है, इफेक्ट, क्या उसका असर है सोसाइटी पे। ठीक है, रीजंस मांगे हैं और उसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सोसाइटी पे, समझ आ गया? यस। हाँ, तो कॉज इफेक्ट इससे है, वैसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैटेगरी में ही जाएगा, बट दिस इज अ कॉज इफेक्ट इससे। ठीक है, तो ये हो गया कॉज इफेक्ट ऐसे। इसमें हमने इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि इस ऐसे में मैं वो रीजंस बताऊंगी और साथ में जो इसके सोसाइटी पे इफेक्ट्स है वो बताऊंगी। 2 पैराग्राफ्स मैंने रीजंस बता दिए और तीसरे पैराग्राफ में मैंने इफेक्ट्स बता दिए। अच्छा, रीजंस बताओ आप, रीजंस क्या है? ऑन योर फिंगर टिप्स पॉइंट्स कर लो। देखो जो एल्डरली पीपल है ना, उनको बच्चों को ये लगता है कि इनसे तो हम कुछ नहीं सीख सकते, आज हम टेक्नोलॉजी से सब कुछ सीख सकते हैं। दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द इंटरनेट एंड दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द सैटेलाइट टीवी। मतलब इंटरनेट, द टाइम ऑफ द इंटरनेट एंड द एरा ऑफ द सैटेलाइट टीवी, इनको लगता है कि इनको कुछ नहीं आता, हमें इनसे ज्यादा आता है, तो इसलिए रिस्पेक्ट कम हो जाती है ना। ठीक है, और दूसरा रीजन मैंने इस पैरे में डाला है कि जो ओल्ड पीपल है वो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो फिर गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, रिटायरमेंट एज बढ़ा रही है, और फिर उसकी वजह से यंग पीपल की जॉब्स जा रही हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही बिकॉज ये लोग काम कर ही जा रहे हैं, तो वो फिर इनको रिस्पेक्ट नहीं करते। 2 रीजन डाले हैं। ठीक है, सेकेंड पैरे में मैंने रीजन डाला है कि जो ओल्ड पीपल है ना, उनके सेट बिलीव्स है हाउ पीपल शुड लिव देयर लाइव्स, और जो यंग पीपल है उनको लगता है कि ये जो आइडियाज हैं ये आउटडेटेड है, पुराने हैं, ऑब्सोलीट है, आज के युग में ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, और जो ओल्ड पीपल है अपने आइडियाज को फोर्स करते हैं, उससे कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं और फिर वो उनकी लॉस ऑफ रिस्पेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये समझ आ गया आपको कि ओल्ड पीपल की रिस्पेक्ट क्यों कम हो रही है? यस मैम। ठीक है, अब देखो जब हम ओल्ड पीपल का टाइम था तो जो सोसाइटी थी ना वो 24/7 सोसाइटी नहीं थी। आज के जो बच्चे हैं वो 24/7 सोसाइटी के बच्चे हैं, उनकी जॉब आवर्स भी उस हिसाब से है।
आप देखो यहाँ बैठे लोग अमेरिकन कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, उनका काम रात को शुरू होता है 7-8 बजे, सुबह के 2-3 बजे तक चलता है। ओल्ड पीपल कहेंगे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वो आज के बच्चे वो अफोर्ड कर सकते हैं करना? अगर वो उनको बोलेंगे कि ऐसा करो तो फिर उनकी रिस्पेक्ट ही जाएगी ना, यंग पीपल ने थोड़ी माननी है ये बात। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ आप एग्जाम्पल दे के कर सकते हो। ठीक है, तो इस वे में ये बताना है कि उनके जो व्यूज है, सेट व्यूज है, वो कहते हैं ऐसे ही जीवन जियो, तो वो आज के बच्चे उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है अब जो ओल्ड पीपल है वो कहेंगे डाउरी तो लेनी ही लेनी है, अगर लड़के की शादी करनी है डाउरी आनी चाहिए, पर यंग जनरेशन आज की कहेगी डाउरी नो वे। समझ गए? तो ओल्ड पीपल के अगेंस्ट जाएंगे ना, ओल्ड पीपल की रिस्पेक्ट ही कम होएगी ना। ओल्ड पीपल कहेंगे लड़का लड़का, घर में लड़का होना चाहिए, है ना, ये करो वो करो। तो यंग पीपल इस बात को आजकल फॉलो करते हैं? नो, दे विल गो अगेंस्ट देम। तो ये चीजें आप कोई भी एग्जांपल डाल सकते हो। ठीक है मैम, एग्जांपल में न्यूक्लियर फैमिली का भी दे सकते हैं ना? न्यूक्लियर फैमिली का भी दे सकते हो। देखो ये इफेक्ट है कि न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं बिकॉज उनमें आपस में बन ही नहीं रही है, जनरेशन गैप आ रहा है, तो इसको आप इफेक्ट में दे दो सोसाइटीज पे, ये इफेक्ट जा रहा है, इकट्ठे रह ही नहीं रहे। ठीक है, उससे फिर बच्चे बिगड़ते हैं, सोसाइटीज पे ऐसा इफेक्ट आप लिख सकते हो ना, इफेक्ट है, ये कॉज नहीं है। हाँ, कॉज नहीं है, इफेक्ट चाहिए न्यूक्लियर फैमिली। ये इफेक्ट है, समझ आ गया ये इफेक्ट कैसे है? या हाँ, तो वो ओल्ड पीपल की नैगिंग नहीं टॉलरेट करते बच्चे, तो फिर वो इफेक्ट वो ये है कि दे यू नो डोंट लिसन टू देम एंड न्यूक्लियर फैमिलीज में जा सकते हैं। ये देखो इसमें मैंने क्या इफेक्ट्स लिखे हैं? हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस आ जाती है एल्डरली में, उनकी मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ सफर करती है, दे स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड इससे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम हो जाती है। एम्प्लॉयर्स स्टार्ट प्रेफरिंग यंगर एम्प्लॉइज। देखो उस टाइम जो मन में पॉइंट्स आए उससे ऐसे बना दिया। अभी आपको ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है कि डिसरिस्पेक्ट का जो अभी आपने बोला, इफेक्ट का कि न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, ये भी इफेक्ट ही है इस चीज का कि उनकी रिस्पेक्ट कम हो रही है और न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं। ठीक है ये लिख सकते हो आप पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। मैम इसका क्या मीनिंग हुआ ऊपर वाले में, इनफैक्ट गेटिंग ओल्ड इज डिजीज वाला पॉइंट? जो बहुत सारी कल्चर्स है ना, वो यंग यूथफुलनेस को जो वैल्यू करती हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो उसको कहते हैं अरे ये तो बूढ़ा किसी काम का नहीं है, उसको ऐसे डिजीज मानते हैं रादर देन अ नेचुरल प्रोसेस, कि बूढ़ा हो जाना जैसे कोई बीमारी लग गई है, बुढ़ापा। ठीक है, इस वे में ऐसे कहने का ही वे। तो मेनी कल्चर्स यंग पीपल को ज्यादा फेवर करती हैं। यंग सोसाइटीज आर, दे से दे आर बेटर सोसाइटीज, मोर वाइब्रेंट, मोर एनर्जेटिक। ठीक है, ये ऐसे भी है काइल्ड्स का कि कई कल्चर्स में यंग पीपल को फेवर किया जाता है, कई कल्चर्स में ओल्ड पीपल को फेवर किया। ये यंग पीपल ओल्ड पीपल वाले ऐसे कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपका क्यू कार्ड है कोई ऐसा ओल्ड पर्सन यू एडमायर इन योर फैमिली, कुछ ऐसा यस मैम है, यस। अगर वो ऐसे है ना, तो अगर वो क्यू कार्ड है तो सारे ऐसे जिनमें ओल्ड पीपल है, ऐसे सारे ऐसे गेस्ट वर्क है। ओके मैम, ठीक है, ये सारे ऐसे कर लेना। ठीक ओके है, मैम, हाँ यस मैम। हाँ मैम जो फर्स्ट बीपी में मैम अपने ना सेकंड व्यू दिया है ना, यार मैम वो एक्सप्लेन करना पड़ा जा। Second reason is that due to increasing life expectancy, older people are living longer and thus competing with the young for jobs. उसके लिए भी उनकी रिस्पेक्ट कम होगी ना, यंग पीपल की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है इनकी वजह से। हाँ, क्योंकि ये रिटायरमेंट ना होंगे, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी ड्यू टू मेडिकल नवीं मेडिसिन होने के नाल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, सेंचुरी मार रहे हैं मोस्ट ऑफ द एल्डरली फैमिलीज में। ठीक है, ऑक्टाजेनेरियंस, सेंटेनेरियंस, like as compared to like ਆਪਣੀ country like India to like ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ foreign countries ਦੇ ਵਿੱਚ older people same like as a younger generation ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਮ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 50 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਕਲਚਰ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਟ ਇੱਧਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। काम करना इज नॉट बीमार पैन पे काम छड़ना है, काम करना becomes a way of life for people, you know, की करना है वेले रह के, that way also they think, है ना।
ਹਾਂ That will ਪਰ also- ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਈਵਨ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਆ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਕਹਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਟ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ 올ਡਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ your parents are very lucky huh you really do you all think like that yeah Yes, ma'am. yes chalo that's very nice Ma'am, in the previous essay, please tell about the conclusion also because I am not able to write conclusion well. Conclusion में बेटे कुछ भी नया नहीं देखो to sum up the growing disrespect for the senior citizens can be attributed to various reasons and this has disastrous consequences for the elderly and the society as well बस मैंने कुछ नया नहीं लिखा मैंने ये लिखा है कि जो ग्रोइंग डिसरिस्पेक्ट है सीनियर सिटीजन्स की उसके बहुत कारण है और इसके बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेस हैं फॉर द एल्डरली एंड द सोसाइटी एज वेल कंक्लूजन में कुछ नया नहीं लिखना सिर्फ वर्ड प्ले करके डिफरेंट वर्डिंग में वही लिखना है जो इंट्रो में लिखा है समझ आ गई कंक्लूजन Yes, ma'am. हाँ Thank you. कंक्लूजन में कुछ नया नहीं लिखना ठीक है ओके नेक्स्ट एसे इज डिस्कस बोथ व्यूज तो अभी तक हमने कौन कौन से एसेस डिस्कस कर लिए हैं मैम एक ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਕਾਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ एंड दिस एसे इज डिस्कस बोथ व्यूज ठीक है डिस्कस बोथ नाउ डिस्कस बोथ व्यूज में और बाकी सारे एसेज में ये फर्क है कि इस एसे में आपने लिखना है पहले पैरे की फर्स्ट लाइन बनाओगे बहुत कारण है क्यों कुछ लोग ये कहते हैं दूसरे पैरे में आपने फर्स्ट लाइन बनानी है जो लोग वो कहते हैं उनके कारण ये हैं मतलब मैंने ये डिफरेंट तरह के सेंटेंस दे दिए हैं कि कुछ लोग क्यों ऐसा कहते हैं और कुछ लोग क्यों वैसा कहते हैं ये फर्स्ट सेंटेंस बन जाएगा दोनों पैराग्राफ्स का और तीसरा पैराग्राफ आपके व्यू का आई बिलीव दैट से शुरू कर लेना या इन माय ओपिनियन से शुरू कर लेना ठीक है जो कंक्लूजन होता है उसमें थीसिस स्टेटमेंट ही हम दे सकते हैं मैम थीसिस जो हमने बताया वही देना है कंक्लूजन में वही देना है बस डिफरेंट वर्डिंग में बेसिकली देखो मैंने आपको आइल्स के एसे की डेफिनेशन बताई थी इंट्रो में बताना है क्या बताना है फिर बताना है और कंक्लूजन में बताना है कि क्या बताया है तो बेसिकली वही होगी ना इंट्रो कंक्लूजन सेम नहीं हुई सी यस मैम जो टॉपिक सेंटेंस है थीसिस प्लस हाँ टॉपिक सेंटेंस इज डिफरेंट टॉपिक सेंटेंस विल डिपेंड ऑन योर थीसिस स्टेटमेंट जो आप बनाते हो उस हिसाब से आपके टॉपिक सेंटेंस बनेंगे वो आपके पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस है टॉपिक सेंटेंस जो एग्जामिनर को ये बताएगा इस पैराग्राफ में क्या है यस मैम ठीक है थीसिस स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है इंट्रोडक्शन की जो एग्जामिनर को बताएगी एसे में क्या है आने वाला है ठीक है और कंक्लूजन का सेंटेंस वो सेंटेंस है जो बताएगा अभी अभी हमने आपको क्या क्या बताया है ओके मैम समझ गए यस मैम तो इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि हमने आपको ये बताना है और कंक्लूजन में ये उसको बताना है कि हमने अभी अभी ये बताया है बेसिकली वही चीज है जो इंट्रो में है यस बट यू ऑलरेडी टोल्ड द एग्जामिनर ठीक है ये समझ आ गया बहुत इजी देखो मेरा एम पता क्या है कि आपके मन से डर निकालना है कि आइल्स ऐसे कोई हुआ नहीं है इट्स वेरी इजी जस्ट गेट द हैंग ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट द एसे 2-3 पॉइंट्स हो आपका एसे बन जाएगा ठीक है यस और बिल्कुल आप 4 पैराग्राफ ऐसे बना देना ज्यादा पॉइंट्स नहीं उसी को सपोर्ट कर देना पुट 1 or 2 एग्जांपल्स एंड यू आर डन ओके दैट इज इट यस मैम हाँ तो आप सब बच्चे जो अटेंड कर रहे हो काफी अच्छा हाफ सेंचुरी तो बच्चे हैं यहाँ पे लाइक 50+ हैं तो आप मुझे बताओ आपको कुछ इजी लग रहा है मेरा मेथड यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. That is the aim. Okay?
डिस्कस ऐसे आ गया. सम पीपल थिंक पेरेंट्स शुड रीड और टेल स्टोरीज टू चिल्ड्रन. कुछ लोग कहते हैं पेरेंट्स को ना रीड करके बतानी चाहिए स्टोरीज बच्चों को. बाकी लोग कहते हैं कि पेरेंट्स को ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे जो है खुद बुक्स पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं. दोनों व्यूज को डिस्कस करो और अपना ओपिनियन दो. ठीक है. अच्छा, मैंने कल आपको मॉक टेस्ट के लिए ऐसे देना है. एक ऐसे अभी आया है एकेडमिक में, बहुत इजी ऐसे है कि लोग आजकल बहुत मूवीज देखने लग गए हैं. इज दिस ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट? तो आप ये वाला ऐसे मॉक टेस्ट में डाल दूं, ये अपने आप बनाओगे, बुक में नहीं है. यस मैम. यस मैम. हाँ, तो इसका ना आपका टाइम बहुत बचेगा. पता है क्यों? नहीं तो बच्चों को 450 ऐसे फरोलने पड़ते हैं, कहाँ है पहले पढ़ ले. तो आपका होमवर्क कम हो गया. ठीक है, आपको मैंने बता दिया बुक में है ही नहीं. ठीक है, नाउ टाइम सेव्ड, राइट? एंड द टॉपिक इज ए जनरल टॉपिक, यू कैन राइट इट. आजकल पिक्चरें बहुत देख रहे हैं लोग, क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि नेगेटिव है? ठीक है, आपने ये बनाना है, वो हैंडल करना अभी हम सीख लेंगे. ठीक है, तो मैं आपको बता दिया. अभी मैं मॉक टेस्ट आपका बना के डालने वाली हूँ. उसके बाद 1 line draft and this essay and you will all write it over today and tomorrow. I'll check it tomorrow 12 noon, deadline for submission of the writing tasks. ठीक है? हाँ. Yes ma'am. Okay. Ma'am, you will be giving the questions in this group only, Mohali group. Yes, I'll be giving the mock test because आप तो उसी ग्रुप में हो ना. आपने मुझे mock test. Mohali. हाँ. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. So some people think parents should read or tell stories to children, while other people think parents को ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्चों को खुद बुक्स पढ़नी. आपको दोनों व्यूज डिस्कस करने हैं. अब आपको ना इसमें इंट्रोडक्शन ये सारा मैं आपको ऐसे करा रही हूँ क्योंकि मेरे को डिस्कस ऐसे का फॉर्मेट आपको अच्छे से कराना है. और डिस्कस ऐसे का फॉर्मेट ये वाला पिकअप करके मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है. ये 10 अक्टूबर को ऐसे आया इंडिया में. ये रिपीट हो सकता है. अच्छा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर डिस्कस ऐसे का फॉर्मेट है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैंने बहुत देखा है कि जिस बच्चे के पहले 5 हैं, डिस्कस ऐसे आ गया, फॉर्मेट अच्छे से करा हुआ था, उठा दिया, फोन करा मुझे बाहर, मैम डिस्कस ऐसे आया, मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसे आपने कराया था. तो 6.5 थे उस बार राइटिंग में. इट वॉज ए जंप ऑफ 1.5 बैंड. ओके, ये फॉर्मेट उठा लो, फॉर्मेट बहुत ईजी है, उसमें गलती नहीं कर सकते आप. ठीक है, ओके. It is believed by some people that parents should read or tell stories to children, while others believe that children can come to know about stories themselves by reading books or by watching TV or movies. In this essay, I shall discuss both views. I believe that self-reading and watching TV and movies themselves can never be compared with a parent reading stories to children. तो मैं कौन सी साइड में हूँ, फॉर्मर के लेटर? Former. अच्छा. हाँ, बिल्कुल सही है. मैं फॉर्मर साइड में हूँ क्योंकि मैंने ये बता दिया है कि उसका जो बच्चे खुद देखें उसका कभी कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता जब पेरेंट्स पढ़ के सुनाते हैं. मैं फॉर्मर साइड पे हूँ, पर मेरे को दोनों साइड्स डिस्कस करनी है. ठीक है, तो इसमें पहले पैराफ्रेजिंग कर दी, फिर मैंने अपना व्यू दे दिया और मैंने अपने बॉडी पैराग्राफ्स में क्लियर कर देना है कि ये मैं डिस्कस ऐसे को हैंडल कर रही हूँ. अगर मैंने वो वैसे नहीं शुरू करा तो ऐसे लगेगा मैंने अपने व्यू का ऐसे लिखा है. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में मैं वो भी लाइन लिखवा देती हूँ, अगर बच्चे लिखना चाहें लिख सकते हैं. इन दिस एसे आई विल डिस्कस बोथ पर्सपेक्टिव्स, यू कैन राइट दैट, और उसके बाद अपना व्यू बोल दो. मैंने लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है इन दिस एसे आई शैल डिस्कस बोथ व्यूज. ये लाइन लिख के फिर अपना व्यू लिख दो, और अपना व्यू खोल के लिख दोगे बेटर है. नहीं लिख सकते हो तो सिंपल लिख दो, आई पर्सनली एम इन फेवर ऑफ द फॉर्मर साइड. बस समझ गए? Ma'am, should there be comma after in this essay, comma, I shall discuss both views? Can there be? हाँ, आ सकता है कॉमा. आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग. कॉमा का ये है कि कई जगह दोनों वेज में करेक्ट है. ओके, अदरवाइज ये वर्ड है ना, इसमें थोड़ा बहुत ग्रामर का ऑलरेडी सेट है, ग्रीन लाइन आ जाती है इफ समथिंग इज रॉन्ग ग्रामेटिकली. ओके. Okay, there are many reasons why some people believe that parents should read bedtime stories to children. अब देखो ये लाइन, बहुत कारण है क्यों कुछ लोग ये कहते हैं कि पेरेंट्स को रीड करनी चाहिए. फिर उनके मैंने रीजंस दिए हैं टू बिगिन विद. ठीक है, फिर उसके बाद इन एडिशन, ये मेरे ट्रांजिशंस, ये है मेरे कनेक्टर्स. तो देयर आर मेनी रीजंस क्यों कुछ लोग कहते हैं. ये समझ आ गया आपको?
फिर उसके बाद मेरे कनेक्टर्स क्या है, टू बिगिन विद कनेक्टर है, ठीक है। और उसके बाद मेरा और क्या कनेक्टर है, इन एडिशन, ठीक है, ये कनेक्टर है। On the other hand, those who opine that children should themselves read stories from books or watch them on TV and movies give their reasons as follows. ये 5 वर्ड हैं जो बच्चे ना भूल जाते हैं, यहीं पे फुल स्टॉप डाल देते हैं। अब अगर ये 5 वर्ड नहीं लिखे तो ये सेंटेंस 5 बैंड का है, क्योंकि मीनिंगलेस हो जाता है। दूसरी तरफ जो लोग ये कहते हैं बस उसके बाद कुछ डाला ही नहीं, उनके रीजंस निमन लिखत हैं, कुछ तो लिखोगे ना उसके बाद, गिव देयर रीजंस एज फॉलोज, वो नहीं लिखते बच्चे, वो गड़बड़ हो जाती है। ये आपको समझ आ गया? ये सेकंड, ये बॉडी टॉपिक सेंटेंसेस कैसे डालने हैं? यस मैम। डिस्कस इसे में। फिर इसमें मैंने कनेक्टर्स कौन से डाले हैं? फर्स्टली एंड सेकेंडली। मैं दोनों पैराज में फर्स्टली सेकेंडली कर सकती थी, पर मैंने नहीं करा। मैंने एक में कर दिया टू बिगिन विद और इन एडिशन, दूसरे में कर दिया फर्स्टली सेकेंडली। ये भी चेंज कर सकते हो ना आप कनेक्टर्स, ये तो इजी है, सीख लिए। एक पैराग्राफ में फर्स्टली सेकेंडली कर दो, दूसरे पैराग्राफ में टू बिगिन विद इन एडिशन, ठीक है। फिर आई बिलीव दैट, फिर मैंने अपने व्यू का पैरा दे दिया। आई बिलीव दैट पेरेंट्स शुड रीड आउट स्टोरीज टू चिल्ड्रन। द मेन रीजन कि बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं उससे भी बहुत पहले से पेरेंट्स रीड आउट करना शुरू कर देते हैं, ये मैंने एक पॉइंट डाला है। और फिर मैंने दूसरा पॉइंट डाला है कि व्हेन पेरेंट्स रीड आउट चिल्ड्रन की ना ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट पिकिंग अप बुक्स एंड रीड, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मोटिवेट द चिल्ड्रन ऑफ टुडे टू रीड। तो आज बड़ा मुश्किल है उनको मोटिवेट करना, रीड करो भाई, ठीक है। उनको रीड करते जाओगे बच्चे फिर खुद बुक्स उठाना लग जाएंगे। और फिर दूसरा मैंने ये पॉइंट डाला है, मोर ओवर मेरे हिसाब से अगर हम लेट करते हैं बच्चों को कि खुद ही टीवी के आगे बैठे रहें, तो दैट इज पैसिव पेरेंटिंग। पैसिव मतलब क्या होता है? पैसिव का क्या मतलब है? एक्टिव पैसिव। पैसिव का क्या मतलब है? इनएक्टिव। हाँ देखो, पैसिव होता है जिसमें खुद कुछ नहीं कर रहे, अपने आप ही हो रहा है। पैसिव पेरेंटिंग होगी ना, अब टीवी सिखा रहा है बच्चों को, पेरेंट्स तो सिखा ही नहीं रहे, ठीक है। तो पेरेंट्स, कई पेरेंट्स ना टीवी को एज बेबी सिटर यूज कर लेते हैं, अपना काम करी जाएंगे, बच्चे को टीवी के आगे बैठा रहे हैं, बच्चा तो खुश है, 4-4 घंटे बैठा रहेगा, हिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो अब पेरेंट्स को पता ही नहीं चलेगा वो क्या क्या सीख रहा है वहां से, ठीक है। तो टू सम अप, इट इज ऑलवेज बेटर फॉर द पेरेंट्स। मैंने बस वही लिखना है जो मैंने ऊपर लिखा था। मेरा व्यू क्या था कि पेरेंट्स रीड करें वो बेटर है, मैंने वही लिखा है, पेरेंट्स का बेटर है, ठीक है। और ये मैंने एक वो डाल दिए, ये नहीं डालो तो भी चलेगा। स्टोरीज आर द करेंसी ऑफ ह्यूमन कंटैक्ट, दिस वुड गिव देम क्वालिटी। मैंने पॉइंट्स डाल दिए, वैसे ये नहीं डालो तो भी चलेगा। बेटर फॉर पेरेंट्स एज वेल एज द चिल्ड्रन इफ पेरेंट्स रीड अलाउड टू द चिल्ड्रन। अगर पेरेंट्स रीड अलाउड करें, सॉरी, ठीक है। ये समझ आ गया आपको ऐसे? यस। ये 10 अक्टूबर को आया 1 PM। बुक में था पहले ऐसे, बुक से ही था ये पुराना, ये ऐसे पहले भी था बुक में। ये 10 अक्टूबर को रिपीट हुआ है अभी रिसेंटली 10 अक्टूबर मीन्स 3 महीने हो गए, ठीक है। सो दिस ऐसे कैन बी सीन नाउ, ठीक है। अब ये एक ऐसे लास्ट ऐसे आज मैं ये करा रही हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, क्योंकि फिर मेरा रीडिंग का आज मैंने पैसेज बड़ा अच्छा तैयार करा हुआ है, तो वो करना है। उसके बाद हमने In some countries, more people choose to live alone or by themselves in recent years. Why is this the case and is it a positive or negative development for the society? कुछ कंट्रीज में बहुत से लोग अकेले रहते हैं, ऐसा क्यों है और क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव डेवलपमेंट है सोसाइटी के लिए? अब पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट ऐसे में आप क्या कर सकते हो? इसमें एक तो रीजंस भी मांगे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट के ऐसे में। जैसे आप एग्री डिसएग्री ऐसे में वन साइडेड जा सकते हो ना, इसमें भी वन साइडेड जा सकते हो, ठीक है। और इसमें टू साइडेड भी जा सकते हो, ठीक है। पर जो आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे वो ही आपको सपोर्ट करना है अपने पूरे एसे में, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ उसको मैंने कैसे हैंडल करा है। मैंने ना रीजंस डाले हैं क्योंकि रीजंस मांगे हैं। व्हाई इज दिस द केस? रीजंस मांगे हैं ना। और क्वेश्चन है कि बहुत से लोग अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव डेवलपमेंट है, ठीक है।
मैंने लिखा है पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अगर मैंने ऊपर ये लिख दिया कि दोनों है तो मैंने ऐसे में लिखना है दोनों है। मैंने ये यहाँ लिखा आई बिलीव इट इज लार्जली अ नेगेटिव डेवलपमेंट ऑल्दो देयर आर ए फ्यू एडवांटेजेस टू। तो मैंने लार्जली नेगेटिव लिखा है, मतलब मैं अगर अब मैं पैरा बनाऊंगी तो मैं उसमें 2 पॉइंट नेगेटिव के और एक पॉजिटिव का डाल सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने ज्यादा नेगेटिव है, थोड़ा पॉजिटिव ये भी लिख दिया है। ठीक है, फिर मैंने रीजन डाले हैं। पहले रीजन है, फिर सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है जनरेशन गैप का। जनरेशन गैप वाला क्या, जनरेशन गैप का क्या मतलब है? अभी हमने पिछले ऐसे में करा था लैक ऑफ रिस्पेक्ट का इफेक्ट है न्यूक्लियर फैमिलीज, वो जनरेशन गैप ही लैक ऑफ रिस्पेक्ट का कारण है ना। हाँ, तो वो न्यूक्लियर फैमिलीज का ये एक पॉइंट डाल दिया। सिचुएशन इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। फिर मैंने ज्यादा नेगेटिव दिए हैं, पॉजिटिव साइड में मैं यहाँ से शुरू करा ऑन द पॉजिटिव साइड उसी पैरे में। ठीक है, इसमें फास्टर प्रोग्रेस लिखी है, न्यूक्लियर फैमिलीज इजी टू मेंटेन है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, लड़ाई झगड़े कम होते हैं जब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, और फैमिली गेट टुगेदर ज्यादा अच्छी सेलिब्रेट होती हैं बिकॉज नॉर्मली वो इकट्ठे नहीं रहते, तो जब कभी इकट्ठे होते हैं तो सब एंजॉय करते हैं आपस में। तो ये मैंने पॉइंट डाल दिया है। तो ज्यादा अच्छा है, फास्टर प्रोग्रेस है, कम खर्चे होते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज में, इट इज इजियर टू मैनेज न्यूक्लियर फैमिलीज देन जॉइंट फैमिलीज। ठीक है, ये पॉजिटिव लिखी है और बाकी नेगेटिव। मैं ये ऐसे आपसे शेयर कर दूंगी। तो हमारे ऑलमोस्ट सारे ऐसे डिस्कस हो गए कि कोई रह गया? कोई ऐसे का टाइप रह गया? मैम ऑलमोस्ट सारे हो गए। ਤੇ ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਡੀਐਫ ਆਈ? नहीं सारे। And what about advantages and disadvantages ऐसे? हाँ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाला एक देख लेते हैं। हाँ, ये है। ठीक है, ये पीयर प्रेशर का ऐसे है। यंग पीपल आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड इन देयर बिहेवियर एंड सिचुएशंस बाय अदर्स ऑफ द सेम एज। दिस इज कॉल्ड पीयर प्रेशर। ये पीयर प्रेशर कैसे है कि यंग पीपल जो हैं उनके जो साथी हैं उनका उन पे बहुत असर होता है। क्या इसके नुकसान इसके फायदों से ज्यादा हैं? ठीक है, ये ऐसे है। अब इसमें जो डू यू थिंक दैट डिसएडवांटेजेस आउटवे द एडवांटेजेस एंड इज दिस अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट, इसमें क्या फर्क है? और कोई फर्क नहीं है, बस एक ही फर्क है। अगर वो आपको समझ आ गया तो फिर आप ऐसे को डिस्कस कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। मैम इसमें डिसएडवांटेजेस ज्यादा है और एडवांटेजेस कम है। You cannot go one sided. You cannot go one sided, that is the difference. समझ गए? इसमें आप ये नहीं कह सकते, ये सारे डिसएडवांटेजेस नहीं डाल सकते। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके फायदे भी हैं नुकसान भी है। आपकी राय सिर्फ किस बात में मांगी जा रही है? आपकी राय सिर्फ एक ही चीज में मांगी जा रही है, क्या चीज ज्यादा है? समझ आ गया? बेदे नुकसान डीमेरिट्स ज्यादा ने, डी एडवांटेजेस। हाँ, मतलब कुछ भी आपसे पूछ रहे हैं, आप जो मर्जी लिखो ऊपर। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं क्या इसके नुकसान ज्यादा हैं कि फायदे ज्यादा हैं। स्टेटमेंट कह रही है इस चीज के नुकसान भी हैं फायदे भी हैं। आपसे पूछ रहे हैं क्या ज्यादा है, बस आपने ये लिखना है ये नुकसान ज्यादा है, या आपने लिखना है फायदे ज्यादा है। अगर आप नुकसान ज्यादा लिखते हो तो आप 2 पैरास में नुकसान लिख दोगे, एक में फायदे। पर जो इज दिस ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट है उसमें आप वन साइडेड जा सकते हो ना। आप लिख सकते हो इट्स ए पॉजिटिव डेवलपमेंट, सारा ऐसे पॉजिटिव पे बन जाएगा। इट्स ए नेगेटिव डेवलपमेंट, सारा ऐसे नेगेटिव पे बन जाएगा। समझ आ गया आपको पॉइंट? इसमें आप वन साइडेड नहीं जा सकते हो। मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है आई बिलीव दैट डिसएडवांटेजेस ऑफ पीयर प्रेशर आर फार मोर, तो डिसएडवांटेज ज्यादा है। ये समझ आ गया आपको? हाँ, तो मैंने उसके डिसएडवांटेज एक पैरे में डाल दिए, दूसरे पैरे में भी मैंने डिसएडवांटेज डाल दिया, ऑन दी अदर हैंड करके मैंने बेनिफिट डाल दिया। बेनिफिट क्या है? अगर आपका कोई साथी बहुत अच्छा है पढ़ाई में, आपको भी मोटिवेट करेगा ना पढ़ने के लिए। अगर आपका कोई साथी जो है मतलब एकेडमिक अचीवमेंट का मैंने एक डाल दिया, इफ योर फ्रेंड इज डूइंग वेल एट स्टडीज ही विल मोटिवेट यू आल्सो टू डू वेल, यू विल कम्पीट विद हिम एंड डेफिनेटली यू विल आल्सो स्टार्ट वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है ना। समझ आ गया? यस मैम। हाँ, तो इजी है ऐसे, मतलब सिर्फ इतना ही फर्क है कि इस ऐसे में आप वन साइडेड नहीं जा सकते हो, और वैसे बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इसकी कंक्लूजन देखो कैसे हैंडल करी है। टू समराइज, while there are certain positives of peer pressure, I think on the whole it is detrimental for children and teenagers. समझ आ गया? बस सिंपल ये लिखा है कि while थोड़े से positives हैं, on the whole negative है।
वही चीज लिखी है ना जो ऊपर लिखी थी? यस मैम। ओके, सो मैं अभी ये मीटिंग एंड कर रही हूँ, ये मैं एसेज आपसे शेयर कर दूंगी। इनफैक्ट मैं 300 से मैंने स्टार्ट करा था और 310 तक मैं शेयर कर देती हूँ, आप ये पढ़ लेना एसेज। और मैंने आपको बताया कि आई विल बी पुटिंग अप द मॉक टेस्ट। तो आपने ना राइटिंग टास्क मुझे करके भेजना है, मुझे चेक करने में टाइम लगता है उसको। तो आज जितने बच्चे भेज देंगे मैं आज शुरू कर दूंगी चेक करना। कल नून डेडलाइन, नून के बाद कोई सबमिट करेगा तो फिर प्लीज एक्सक्यूज मी, आई माइट नॉट बी एबल टू चेक इट। और अब मैंने आपको पूरा टाइम दे दिया, आपको कोई बहाना नहीं है। यू हैव द होल नाइट, यू कैन वेक अप एंड राइट द एसे, सबमिट इन टाइम। ठीक है? और ठीक है, समझ आए? आ गई ना? आपको टाइम क्या मुझे भेजना है? कंप्लीट Ma'am, please summarize once more discussion essays, just in very briefly. डिस्कस ऐसे में ना बेटे, ऊपर आपने लिखना है सम पीपल से दिस, अदर पीपल से दैट। इन दिस ऐसे आई विल डिस्कस बोथ, आई साइड विद फर्स्ट व्यू और आई साइड विद द लैटर व्यू। ठीक है? और फिर आपने फर्स्ट पैरे का जो टॉपिक सेंटेंस है वो लिखना है, देयर आर मेनी रीजंस व्हाई सम पीपल से दैट। ठीक है? वो दैट को इलैबोरेट कर देना जो भी है। दूसरे पैरे की फर्स्ट लाइन बनाना है, ऑन द अदर हैंड दोज हु से दिस गिव देयर रीजंस एज फॉलोज, उनके रीजंस देना। ठीक है? और थर्ड पैरा आपने बनाना है आई बिलीव दैट, और कंक्लूड कर देना जो आपका व्यू है वही कर देना। ठीक है? ओके। तो आज की क्लास ठीक लगी आपको? कुछ आपके क्लैरिटी हुई? Yes, ma'am. ओके, चलो गुड, वेरी नाइस। Thank you, ma'am. ऐसे ही इट इज 11:20 शार्प, 11:30 सेम लिंक से आपने आ जाना है मीटिंग में। Yes, जो ma'am. पहले लिंक Okay. दिया हुआ है। ठीक है? Yes, Okay, ma'am. ma'am. Okay, ma'am. ओके। Ma'am, is it ready? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. क्लास ओवर मैम। रीडिंग क्लास के लिए 11:30 सेम लिंक फॉर द जीटी एंड एकेडमिक बोथ। ठीक है? चलो, Yes, ma'am. ओके।